Have you ever wondered about Humboldt's enigma and what it could mean for a country like India? This intriguing question draws us into the world of the renowned naturalist Alexander von Humboldt. Humboldt's studies unveiled a fascinating relationship. Temperature, altitude, and humidity are not just weather phenomena, but key factors influencing the occurrence patterns of species, shaping the rich tapestry of biodiversity. His observations took him to the slopes of the Chimborazo mountain in Ecuador, where he discovered a unique pattern. Contrary to expectations, the world's tropical areas, though bathed in abundant sunlight, do not hold a monopoly on biodiversity. Humboldt's enigma lies in the fact that many regions outside the tropics, particularly those in mountainous areas, are bustling with diverse life. This revelation challenges our understanding of biodiversity. Mountains, despite being distant from the tropics, are vibrant hubs of life, teeming with species that defy conventional wisdom. With that in mind, let's turn our attention to India, a nation known for its diverse landscapes and abundant biodiversity. India is a country that lies partially in the tropics, south of the Tropic of Cancer. It boasts of regions like the Western Ghats that are rich in biodiversity. This zone, which also includes the Sri Lanka biodiversity hotspot, is expected to be the most diverse in the country given its tropical location. This lush region serves as a prime example of Humboldt's theory, with its abundance of species thriving due to the warm temperatures, high humidity, and low altitude. Yet Humboldt's enigma unfolds as we cast our eyes northward to the eastern Himalayas. Here, outside the tropics, we find a region even more diverse than the Western Ghats. Despite its cooler temperatures and higher altitudes, these mountains are teeming with a variety of life forms, challenging the traditional understanding of biodiversity distribution. This unexpected diversity in a non-tropical region like the eastern Himalayas forces us to ponder, so, what drives this unexpected biodiversity in the mountains? Mountains are fascinating, not just for their majestic beauty, but also for their role in biodiversity. They are the stage of a remarkable play where two processes join hands to generate biodiversity. The first act features geological processes such as uplifts that carve out new habitats on the mountain stage. These habitats become cradles, nurturing and giving rise to new species. In the second act, we see how some mountains, blessed with climatological stability, become timeless museums. These mountains, undisturbed by the passing ages, become safe havens for species to endure, persist, and over time accumulate in great numbers. Take the northern Andes range, including the Chimborazo, the most biodiverse place on Earth. As we journey from its foothills to its peaks, we encounter a diverse array of habitats, each with its unique cast of species, from tropical evergreens to alpine tundra. In the end, Humboldt's enigma is a reminder of the intricate and surprising ways nature works, and the importance of preserving these unique ecosystems for future generations. इसकी वीडियो थी जो मैंने प्ले कर दी थी स्टार्टिंग में ही। इस आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, फाइन, ओके। तो ये जो हम्बोल्ट है ना, इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। लेट मी जूम इन दिस पार्ट, ठीक है। इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हम्बोल्ट। अब समझते हैं ये हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है, ठीक है। इट्स रिलेटेड अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो हम्बोल्ट ने साउथ अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स का पढ़ा होगा माउंटेन्स पे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कौन से माउंटेन्स हैं? दिस, लेट मी जूम इन, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां पे आपको एंडीज मिल जाते हैं, ठीक है। एंडीज आपको मिल जाते हैं कौन सी कोस्ट पे? दिस वन इज, विच कोस्ट इज दिस वन? दिस इज वेस्टर्न कोस्ट, ओके, फाइन। तो इन्हीं माउंटेन्स में हम्बोल्ट ने स्टडी किया, ठीक है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने एक रिलेशनशिप देखी। कौन सी रिलेशनशिप? टेम्परेचर, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, इन तीनों का जो स्पीशीज हैं उसके पैटर्न, उसकी ऑकरेंस के पैटर्न से लिंक है, ठीक है। मतलब किसी प्लेस का टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी इंफ्लुएंस करती है स्पीसीज के पैटर्न्स की ऑकरेंस को, ठीक है। तो उन्होंने ये कहां पे स्टडी किया? चिम्बोराजो, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में। इट्स चिम्बोराजो माउंटेन इन इक्वाडोर, ठीक है। कहां पे? लेट्स सी द लोकेशन, ठीक है। दिस, हियर वी कैन सी, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। यहां पे है चिम्बाराजो, ठीक है। इट्स एन इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर कंट्री में है चिम्बाराजो, ठीक है, फाइन, क्लियर है, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि लिंकेजेस होती हैं, फाइन। नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज कि जो वर्ल्ड में एक पहले से थ्योरी चल रही है, वर्ल्ड ट्रॉपिकल एरियाज रिसीव मोर एनर्जी फ्रॉम सन, उनको सन से बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है क्योंकि वो डायरेक्ट इंक्लिनेशन पे है, इक्वेटर के पास जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, ठीक है, लेट मी जूम इन, दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो इसके 10 डिग्री अबाव इन नॉर्थ, 10 डिग्री डाउन इन साउथ, तो जो ये वाला एरिया है अक्रॉस द लैटिट्यूड, ठीक है, अक्रॉस द लैटिट्यूड, ठीक है, जो ये वाला एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिकल, ऊपर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, देन फ्रीजिड, ठीक है। इस वाले एरिया में सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है, फाइन, एट 90 डिग्री। तो यहां पे सन की एनर्जी मोस्ट है, पूरी अर्थ में जो सबसे ज्यादा सन की एनर्जी मिलती है वो यहां मिलती है, ठीक है, फाइन फाइन। तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, हियर यहां पे देखिए आप लोग, ट्रॉपिकल एरियाज में सन की डायरेक्ट सनलाइट है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए इन एरियाज की प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, ठीक है। तो इनकी डाइवर्सिटी भी ग्रेट होती है इसी चक्कर में, ठीक है, फाइन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सी दिस वर्ल्ड मैप, ये जो ट्रॉपिक्स वाला पार्ट है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। अब जैसे आप इस एरिया से नॉर्थ जाएंगे ना, वैसे ही सनलाइट कम होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होगी और डाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। साउथ में जाएंगे सेम प्रोसेस, डाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, कॉन्गो का रेन फॉरेस्ट, ऑल दीज आर लोकेटेड ऑन ट्रॉपिकल बेल्ट, फाइन। समझ लिया हमने, ये वेल स्टैब्लिश्ड ट्रेंड था, ठीक है। बट हम्बोल्ट एनिग्मा का ये कहना है कि अर्थ ट्रॉपिकल एरियाज के अलावा बल्कि उससे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन्स फाइंड होते हैं, कहां पे, माउंटेन्स में, ठीक है। मतलब हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है कि वी कैन स्टिल फाइंड मोर डाइवर्स, ठीक है, एरियाज अदर देन ट्रॉपिकल बेल्ट इन माउंटेनियस रीजन्स, मतलब इन माउंटेन्स, ठीक है, ठीक है, फाइन। हम्बोल्ट एनिग्मा समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइन। अब इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया के केस में हम देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी इन इंडिया, इंडिया के केस में क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इन आवर ट्रॉपिकल एरियाज जो कि साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। मतलब लेट्स सी दिस इज इंडिया, ओके फाइन, दिस इज इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ ऑफ इट, ठीक है, यहां पे कहीं पे ये नीचे इक्वेटर जा रहा होगा 0 डिग्री, फाइन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज मोर क्लोजर टूवर्ड्स इक्वेटर, तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है भी जैसा कि हमें मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में हमें बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मिल जाती है, फाइन, गुड, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, टूवर्ड्स इक्वेटर, फाइन, हमें अच्छा मिलता है, फाइन, ठीक है, आर्टिकल में सही है, ठीक है। अब लेकिन जो हम्बोल्ट एनिग्मा है वो इंडिया के केस में कहां दिखाई देता है, ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज इन द सेंस दिस पार्ट, दिस इज ईस्टर्न हिमालयाज, फाइन, दिस इज वेस्टर्न हिमालयाज, फाइन। जो ये ईस्टर्न हिमालयस वाला पार्ट है, यहां पे जो आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में जो डाइवर्सिटी मिलती है आपको, ठीक है, जो स्पीशीज मिलती है बर्ड्स की, प्लांट्स की, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, ठीक है, इक्वेटर से काफी दूर है, ठीक है, फिर भी यहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है कि इट कैन आउटस्टैंड, मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाले एरिया है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को भी टक्कर दे सकती है, फाइन, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसी एक्सेप्शंस को हमने हम्बोल्ट एनिग्मा कहा। इंडिया के केस में ये हम्बोल्ट एनिग्मा ईस्टर्न हिमालयस में मिलता है, फाइन। अब रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होने का, ठीक है, इन हिमालयन रीजन्स पे या इन माउंटेनियस रीजन्स पे? दो रीजन है, ठीक है। एक तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू खुद जनरेट हुआ है, ठीक है, माउंटेन, या तो वो टेक्टोनिक प्रोसेस हो सकती है, अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से न्यू हैबिटेट बनते हैं, ठीक है, फाइन, एक तो ये रीजन है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है कि जब स्पीशीज वहां पे आती है ना तो वो क्लाइमेटोलॉजिकली स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, थोड़ा टेक्निकल है, नहीं आएगा समझ में, ठीक है, और मैं भी टाइम पास करूं, कोई मतलब नहीं है, एक एग्जांपल से समझो आप, ठीक है। एंडीज का एग्जांपल, ठीक है, एंडीज में सिम्बोराजो है, ठीक है, सिम्बोराजो जिसको स्टडी किया था हम्बोल्ट है, ये मोस्ट डाइवर्स प्लेस इन द वर्ल्ड है, ठीक है, तो मोस्ट डाइवर्स प्लेस है, फाइन। तो इसका क्या सीन है कि इफ वी स्टार्ट क्लाइंबिंग, अगर उसके फुटहिल से अगर हम क्लाइंब करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, दिस इज एंडीज का एक माउंटेन, ठीक है, इसके फुटहिल से अगर हम क्लाइंब करना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि यू विल सी डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल लेवल्स, मतलब जो टेम्परेचर अबाव पे होगा यहां पे इट विल बी कोल्डर बिकॉज एल्टीट्यूड बढ़ गया है, ठीक है, और यहां पे जो मिडिल में टेम्परेचर होगा ये भी अलग होगा, और जो फुटहिल्स पे होगा टेम्परेचर वो भी अलग होगा। तो आपको 3 टेम्परेचर के वेरिएंस मिल जाते हैं विद इन अ सेम माउंटेन, ठीक है, और आपको रेनफॉल का डिफरेंस भी मिल जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेके लोअर एलिवेशन में जो अल्पाइन और टुंड्रा बायोम्स हैं वो सारी वैरायटी इसी एक माउंटेन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। कैसे मिल जाएगी? देखो, ट्रॉपिकल के लिए आपको चाहिए कि आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, फाइन, और आपको रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है, अबव एवरेज रेनफॉल, ठीक है, फॉर एवरग्रीन। तो आपको यहां पे फुटहिल्स पे टेम्परेचर भी थोड़ा हाई मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू
पीक, ठीक है, आपको रेनफॉल भी ज्यादा मिल जाएगी, तो आपको यहां पे एवरग्रीन मिल जाएगा, ठीक है। मिडिल में डेसिडियस मिल जाएगा, जिसकी कंडीशंस बहुत ही मिडिल पार्ट में रहती है, मतलब मिडिल टाइप का टेम्परेचर चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इट शुड बी बिटवीन 15 to 21, फाइन। और मिडिल में रेनफॉल मतलब नॉट लेस नॉट वेरी हाई, फाइन। मिडिल में मतलब 100 सेंटीमीटर समथिंग, 70 to 100, फाइन। और जो आपको हायर रीजन में, ठीक है, मिडिल के बाद जो हायर रीजन ऑफ माउंटेन्स है वहां पे आपको टुंड्रा मिलेगा, दिस वन, ठीक है। टुंड्रा इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पे कोल्ड है, इट्स टेम्परेचर इज इन -10 -5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यू विल सी दिस लेवल ऑफ वेरिएशन विद इन अ सेम माउंटेन, फाइन। दिस इज अगेन वेरी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, फाइन। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है, ठीक है, आप समझ गए व्हाट इज हम्बोल्ट एनिग्मा, ठीक है, फाइन, ठीक है। इंडिया के केस में हम्बोल्ट एनिग्मा हमें कहां मिलने को मिलता है, ईस्टर्न हिमालयस में, फाइन। तो बेसिकली ओके, स्टोरी आप खुद ही क्रिएट कर लोगे आर्टिकल की। क्या स्टोरी है, हम्बोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही बायोडाइवर्सिटी हाई मिलेगी, उसने इसको चैलेंज किया। उसने बताया कि माउंटेन रीजन्स में जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उससे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। उसने एग्जांपल दिया एंडीज का, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो इसी को हम्बोल्ट एनिग्मा कहते हैं, इसी को एक्सेप्शंस को हम्बोल्ट एनिग्मा कहते हैं। और इंडिया के केस में व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, इंडिया के केस में जो ये हम्बोल्ट एनिग्मा है ये हमारा ईस्टर्न हिमालयस में है, फाइन। और गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम चला रही है इन ईस्टर्न हिमालयस को कंजर्व करने में, नेशनल मिशन इन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इन हिमालय वेलबींग। ये आप खुद ही देख लेना, फाइन। आर्टिकल क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना आर्टिकल, फाइन।